أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. سب لوگ صحیح سے بیٹھنا ہے، کیونکہ آج ہم مزیدار واقعہ سنانے کے لیے جاتے. پچھلے کلاس میں ہم نے جنگ بدر کے بارے میں سنایا تھا، وہ آپ لوگوں نے صحیح سے سمجھا ہوگا. بدر میں کس کو کامیابی حاصل ہوئی تھی معلوم ہے؟ کون جیتے تھے بدر میں؟ مسلمان لوگ. کتنے لوگ مسلمانوں سے شہید ہوئے تھے معلوم ہے؟ کتنے لوگ تھے؟ 14 لوگ. 14 لوگ مسلمانوں سے شہید ہو گئے تھے. اور کافر لوگوں سے کتنا لوگ مر گئے تھے؟ 70 لوگ مر گئے تھے. ان کے لیڈر ابو جہل بھی کیا ہوا تھا؟ اس میں مر گیا تھا. مسلمانوں کو کامیابی ملی. لاسٹ میں کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا تھا، گرفتار کیا تھا. ان کو کیسے چھوڑ دیا تھا معلوم ہے؟ کس طرح چھوڑ دیا تھا؟ جس کے پاس پیسہ تھا ان کے خاندان والے پیسہ لا کے دیا تو چھوڑ دیا. جس کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو کیا بتایا تھا؟ مسلمانوں سے جو لکھنا پڑھنا نہیں آتے ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا. یہ کنڈیشن پہ ان کو بھی چھوڑ دیا تھا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ میں رہتے وقت پھر بھی قریش لوگ حملہ کرنے کے لیے آیا. یعنی ان کو جنگ بدر میں جو شکست کا آیا ہے، ناکام ہوا ہے، وہ ہرگز برداشت نہیں کر رہا تھا. برداشت کرنا ممکن نہیں تھا ان کے حساب سے. تو وہ لوگ پھر بھی بدر کے بدلہ لینے کے لیے احد میں آ گیا. احد نام پہ ایک جنگ غزوہ تاریخ اسلام میں واقع ہوا ہے. یعنی 3000 لوگوں کا فوج بنا کے ابو سفیان، اس مرتبہ لیڈر ابو سفیان کے انڈر میں کفار لوگ، کافر لوگ حملہ کرنے کے لیے آ گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1000 کا فوج بنا کے ان کو سامنا کرنے کے لیے گیا. لیکن راستے میں کیا ہوا؟ 300 لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج سے ہٹ گئے. وہ لوگ واپس آ گئے. وہ کون تھے معلوم؟ منافق لوگ تھے. منافق بولے تو سامنے سب کے سامنے دکھائے گا میں مسلمان ہوں، لیکن وہ اندر میں کیا نہیں ہوگا؟ مسلمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا اس کا اندر میں. ایسا 300 لوگ کیا ہے؟ واپس چلے گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کتنا ہوا؟ 700 کے
कम हो गया। ये 700 लोगों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद जंग के लिए गया। तो उधर एक पहाड़ था, वो पहाड़ के ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के मातहत 50 तीर अंदाजों को लगाया था। किस लिए? पर्वत के पीछे से कोई हमला करने के लिए आते वक्त उसको रोकने के लिए, तीर लगाने के लिए ऐसा लगाया था। लीडर कौन है उनका? अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। तो रसूल ने उनसे फरमाया था कैसे भी हो, जंग में जीता तो भी, कुछ भी हुआ तो भी क्या है, उधर से तुम लोग निकलना हो तो मेरा हुक्म चाहिए, यानी मैं बोलने तक तुम लोग उधर से निकलना ही नहीं। जंग स्टार्ट हुआ, सख्त जंग, लड़ाई बहुत सख्त चल रहा था। उस वक्त मुसलमानों को जीत मिला। मुसलमान पूरा क्या है, जीत की खुशी में रहते वक्त ये तीर अंदाजों से कुछ लोग क्या किए, आगे वापस। उनका लीडर कौन था? अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। उन्होंने मना किया अभी मत जाइए। वो लोग क्या किए, क्या सोच के पहाड़ के ऊपर से निकले, मुसलमान पूरा जीत लिया सोच के। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी हालत में उधर से हटना नहीं बोला है, जब रसूल बोलेंगे तब उधर से जाना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी फरमाया नहीं था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात मुकम्मल तौर पर वो लोग नहीं सुन लिए। वो लोग जल्दी उधर से गया तो पीछे से, पहाड़ के पीछे से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में मुसलमान हो गए, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। तो खालिद के अंडर में एक फौज आ गए, मुसलमानों को हमला करने के लिए आया। कब? पहाड़ के पीछे से आया। तो मुसलमान उधर उधर मुंतशिर हुए थे, तो मुसलमान पूरा उनके तलवारों के नीचे पड़ गए। अचानक पूरा मुसलमानों को मुश्किल हुआ, मुश्किल का सामना करना पड़ा और वो जंग में शिकस्त खाना पड़ा। आखिर में मुसलमान लोग थोड़ा मैनेज करके जीत हासिल किया, लेकिन अचानक फौज आने की वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान आ गया। मुसलमानों से 70 लोग वो जंग में शहीद हो गए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस जंग में शहीद हो गए। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु वो जंग में शहीद हो गए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत भी टूटा हुआ था वो जंग में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा अफवाह भी चल रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या हुआ है, शहीद हो गया बोल के। काफिर लोग ऐसा फैला रहा था, मर गया बोल के, लेकिन असल में उस तरह नहीं हुआ है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दांत को थोड़ा दांत बर्बाद हुआ था। इसी तरह वाकया हुआ जंग उहुद। चलिए हम आज वो चर्चा करते हैं। देखिए जंग उहुद भी इस्लाम के अजीम गज़वात में से एक है। जंग उहुद इस्लाम के अजीम गज़वात में से एक है। उहुद मदीना के करीब एक मशहूर पहाड़ का नाम है। उहुद मदीना के करीब एक मशहूर पहाड़ का नाम है। ग़ज़वे उहुद की कैफियत यूँ बयान की जाती है कि अब जब अबू जहल जैसे कुफ़ार के बड़े बड़े लोग जंग बदर में कत्ल किए गए तो उन्होंने मुसलमानों से बदला लेने का अज़्म किया। देखिए बदर में अबू जहल कत्ल किया गया है, तो अबू जहल कुरैश का बड़ा लीडर है। तो ये अबू जहल सब मर गया तो उनको थोड़ा मुश्किल हुआ, तो उसका बदला लेने के लिए वो लोग उहुद में आ गए थे। तो उन्होंने मुसलमानों से बदला लेने का अज़्म किया बोले तो इरादा किया। और जंग के बदर के 1 साल बाद, एक कब होते, बदर हुआ हिजरा 2 में, ये हिजरा 3 में हुआ था। बदर के 1 साल बाद यानी हिजरत के 3रे साल शव्वाल महीना में 3000 मुशरिके मकाम उहुद में पहुंचे। कितना? 3000 मुशरिके
मकाम उहुद में पहुंचे, जिनका सरदार कौन था? अबू सुफियान था। सरदार अबू सुफियान था। जब कुरैश के आने की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने लोगों को लेकर निकले, जिसमें 1000 लोग शामिल थे। 1000 लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से 300 लोग जो मुनाफिक थे रास्ते से वापस लौट गए। बोले वापस लौट गए, वापस चले गए मुनाफिक लोग, और मुसलमानों की तादाद 700 रह गए। 1000 से 300 गए तो फिर 700 लोग रह गए। जंग उहुद में पहाड़ के पुष्ट से दुश्मन के हमले का अंदेशा था। वो जंग उहुद में पहाड़ के पुष्ट से, उसके पीछे से दुश्मन का हमले का अंदेशा था, डर था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सरदारी में उस जगह मुतय्यन फरमाया। वो पर्वत के उधर 50 तीर अंदाजों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन किए और हुक्म दिया कि जब तक मेरा हुक्म न हो, जब तक मेरा हुक्म न हो उधर से न हटे। जब तक मेरा हुक्म नहीं है तो उधर से नहीं हटना, चाहे जंग फतेह क्यों न हो जाए। अगर जंग में कामयाबी मिली तो भी उधर से हटना नहीं, मैं बोलने तक। उसके बाद जंग शुरू हुई और जोर पकड़ ले, जंग ज़रा सख्त हो गया। मुसलमानों के हमलों से मुशरिक के मैदान जंग से भागने लगा तो मुसलमानों ने उनका तआकुब किया। देखिए, मुशरिक मैदान से जंग से भागने लगा मुसलमानों के हमले से, तो उनको तआकुब किया। तआकुब किया बोलो तो पीछे जाना, पीछे किए। ये देखकर तीर अंदाज अपनी जगह छोड़कर उतरने लगे। ये देखकर तीर अंदाज अपनी जगह छोड़कर उतरने लगे। उनके सरदार अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग रुक न सके। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग रुक न सके। तीर अंदाजों की जगह खाली देखकर खालिद बिन वलीद ने, उस वक्त मुशरिकीन के साथ थे, वो मुशरिकों के साथ थे, खालिद बिन वलीद पुष्ट से हमला किया। देखिए, तीर अंदाज पूरा उधर से चला गया है, तो उधर अभी कोई नहीं है, तो क्या किए खालिद? पीछे से हमला किया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर चंद बहादुरों के साथ जमकर लड़े। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जो थे और कुछ लोग उधर बाकी थे, वो लोग उधर ही इकट्ठा होके वो लोग क्या है लड़े, लेकिन सब के सब शहीद हो गए। सब लोग क्या हुआ है? शहीद हो गए। खालिद ने अपने सवारों के साथ मुसलमानों पर पीछे से जबरदस्त हमला किया। खालिद हमला किया मुसलमानों को। मुसलमानों ने जैसे ही मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि सब दुश्मन की तलवारों के नीचे आ गया है। मुसलमान पीछे देखा तो क्या है? सब दुश्मन की तलवार के नीचे आ गया। घबराई हुई हालत में दोनों फौजें उस तरफ मिल गई। घबराई हालत में दोनों फौजें मिल गए कि मुसलमान मुतफर्रिक हो गए थे, मुसलमान पूरा अलग अलग हुए थे और उनका निज़ाम बिगड़ गया। मुसलमानों का निज़ाम पूरा क्या हुआ है? बिगड़ गया है। जंग के टाइम में कि निज़ाम होते सामने पीछे साइड में सब कौन कौन रहना है, उसी तरह का वो निज़ाम पूरा बिगड़ गया। सख्त लड़ाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दांत क्या हुआ? चले गए। और ये अफवाह भी फैल गई कि ये अफवाह इन ऐसा लोगों के बीच में ऐसे एक खबर फैला हुआ है कि अल्लाह के रसूल की शहादत भी, रसूल शहादत भी हो गई, ऐसा बोले। उस तरह ये जंग जो पहले मुसलमानों की फतह में शिकस्त में बदल गया। पहले कामयाबी थी लेकिन बाद में शिकस्त में तब्दील हुआ। फिर अचानक सहाबा किराम की बहादुरी की वजह से जंग बराबर हो गए। फिर क्या हुआ? सहाबा किराम थोड़ा एडजस्ट करके ये अपने बहादुरी सब दिखा के अच्छे से जंग किया, तो क्या है? जंग बराबरी की हुई। उस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए, 70 मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसमें शामिल थे। मुशरिकीन के 123 अफराद कत्ल हुए। मुशरिकों के 123 अफराद कत्ल हुए। लफ्जों माना पुश्त बोले तो पीछे, ताकुब करना बोले तो पीछे जाना, दंदन बोले तो दांत, दांत।
مشق دیکھیے، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے۔ احد کہاں واقع ہے؟ احد کہاں ہے؟ مدینہ کے قریب ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے احد۔ مسلمانوں کے فوج میں سے جو لوگ واپس لوٹ گئے وہ کون تھے؟ منافق لوگ تھے وہ لوگ۔ مسلمانوں کے تیر اندازوں کا سردار کون تھا؟ مسلمانوں کا تیر اندازوں کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ کتنا؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ دیکھیے، تو اتنا ہی چیز ہے ہم کو یہ چیپٹر میں چرچا کرنا ہے۔ ابھی کیا کیا سیکھ لیے؟ جنگ احد ہجرت 3 سال ہوا، مکہ مشرکین ان کو بدر میں جو شکست کھانا پڑا ہے، ابو جہل جیسے بڑے بڑے لوگوں کے مرنا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ پھر سے جنگ کے لیے آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا فوج کے ساتھ احد کی طرف چلے گئے تھے۔ راستے سے 300 لوگ واپس لوٹے، تو 700 لوگوں کو فوج سے گئے تھے، اور مکہ مشرکین کتنے تھے؟ 3000 تک لوگ تھے، اور جنگ اچھے سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کو شروع میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر اندازوں کو کدھر کھڑا کیے تھے؟ پہاڑ کے اوپر، اور ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا حکم سے ہرگز ہٹنا نہیں بولا تھا۔ لیکن مسلمانوں کو جو فتح، جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ دیکھ کے وہ لوگ نکل گئے، کچھ لوگ صرف باقی تھا۔ تو خالد پیچھے سے، پربت کے پیچھے سے مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے آیا۔ مسلمان ان کے تلوار کے نیچے آ گئے۔ صحابہ کرام پیچھے دیکھا تو سب لوگ موت کے حالت میں تھے۔ تو اس وقت صحابہ کرام تھوڑا ہمت دکھائے، بہادری دکھائی، تو جنگ تھوڑا برابر ہو گئے، لیکن فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کو پہلے شکست کھانا پڑا۔ اس کے بعد صحابہ بہادری کرنے کی وجہ سے جنگ تھوڑا برابر ہی ہوا۔ مسلمانوں سے 70 لوگ شہید ہوئے، اور کافروں سے 123 لوگ بھی مر گئے۔ اسی طرح ہے جنگ احد کی واقعہ۔ چلیے یہ اچھے سے سیکھنا، سبق حاصل کرنا۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔